dear students, my name is Namo Sir and welcome to the JEE Aspire series for your JEE Advanced. Here we will be discussing some questions which will make your concepts of mechanics rock solid. And again, let me introduce myself for all the students who don't know me. And before I do that, a quick reminder to all the students who are here for the very first time, for example, please don't forget to subscribe to our Vedantu channel and hit on the bell icon. Ghante ko zarur daba dena because that will notify you about all the important classes. See, JEE Aspire, the classes are happening every day at 9 p.m. Okay, so let's get started. A quick introduction about myself. For all the students who don't know me, my name is Namo Sir. I'm the proud inventor of Turbo Math. I've taught and mentored 50,000 plus aspirants for JEE and NEET in the last 9 years. I've also been certified by the Indian Association of Physics Teachers. And my dear students, because of your love and support and God's grace, I was invited at the National Teachers Conclave in 2018. And there I was awarded for Best Teaching and Pedagogy. It was very recent, and to be extremely honest, it was life-changing and quite honoring for me. But these credentials are meaningless, and the only reason I'm here is because I love all of you, I love this subject, and we all have to propagate this love. Okay, so for all the students, who have been reaching out to me on multiple channels, on social media, on emails, SMSs, and even if many students meet me in person, like I keep telling, I live in a society where there are 400 plus families. I keep encountering a lot of students, and for them I have made the master classes of physics which will make you fall in love with the subject. And also, if you do all the questions in this playlist, you will be able to have a winning chance in getting really rock solid with examinations like JEE, KV, PY, NEET and whatnot. So the link is very simple. You can access it from your smartphones or smart devices anytime, anywhere. It is tinyurl.com/JEE Physics, where you can have a look at all the master classes which I have taken. I keep updating them. I'm also adding a lot of master classes for class 12th very soon. So my dear students, let's get started. In today's masterclass, the very first critical problem for your JEE Advanced is right here. To be very honest with you, this question is pretty oral, and I will tell you what is the easy way of doing this problem. Okay? So let's have a look at this question. Okay, it's written that there's a rod AB. Okay, there's a rod AB in all the scenarios. C is a fixed point. Okay, C is a fixed point. यहाँ पे fixed point है, यहाँ पे fixed point है, and this is a string. This is a string. ठीक है? And this, my dear students, this floor. Okay, ये जो floor है, that is a frictionless floor. ठीक है? यहाँ पे लिखा है कि it has negligible friction. It is like ice. Okay, लिखा है it's ice. And you have to tell me which is in a stable equilibrium. मतलब जो रखा हुआ है वो वैसे ही रखा रहेगा. इसमें सबसे ज्यादा possibility कौन से वाले केस में है? ठीक है? Which is in an equilibrium configuration. So you have to tell me that. Okay, so let's actually capture this problem. ये बहुत ही simple problem है, and again this is for your starters, and again we also have some great problems coming, and especially the problems which toppers could not do. Okay, we will have a look at that. Obviously they could do it, but again given limited time they had left it. So with that data we have come. So this is a very simple problem. Let's actually first have a look at this. ये हर कोई कर सकता है, but what is the best way to approach it? अब देखो. So if you look at A, okay, इसमें ऑप्शन को देख के करना होता है. A को देखते हैं. So is A in equilibrium? Let's actually have a look at all the forces. So ये एक weight force हो गया. Okay, ये एक weight force हो गया. ये एक normal force हो गया, है ना? टेंशन कहाँ लग रही है? टेंशन ऐसे लग रही है. टेंशन is the pulling force. So can this? Okay, ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं. So I can clearly say, okay, fine. Vertical forces are balanced, but are the horizontal forces balanced? Absolutely not. There is tension, so there is some horizontal acceleration, so this can't be in equilibrium for sure. Okay, it is not in equilibrium. Instead center of mass ऐसे जाएगा इसका. ठीक है? So ऐसे equilibrium में नहीं रह सकती, friction नहीं है. ठीक है? So this is not. बहुत simply हो गया. Okay, now let's have a look at this scenario. Let's have a look at this. बड़े interesting problems होते हैं. Let's have a look at B. तो ये तो आंसर नहीं है. B में अगेन वेट यहां पे लगेगा सेंटर ऑफ मास पे. दिस विल बी द नॉर्मल, दिस विल बी द टेंशन. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. वेक्टर ऐसे है, तोड़ लो, ब्रेक इट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ओके, टेंशन को ब्रेक करो. तो टेंशन को जब ब्रेक किया तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा टेंशन का, एक ऐसा आएगा, है ना? तो इसको मैं Tx बोल देता हूं, इसको मैं Ty बोल देता हूं. इसको तोड़ दिया मैंने. तो हाँ, अब मैं बोल सकता हूं, चलो मान लो कि
वर्टिकल वाले बैलेंस कर देते हैं, बट नेट देयर इज सम फोर्स इन एक्स, तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता. सिंपल, गुड विजुअलाइजेशन, इजी वे टू डू इट. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सी. ओके, सी में, ओ वाओ वाओ वाओ, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस. सी इज द करेक्ट आंसर, है ना. अब यहां पे ये है टेंशन. ओके, इट वुड बी अ वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर मल्टीपल चॉइस, बट इसमें एक ही करेक्ट है वैसे. सो दिस इज टेंशन, दिस इज वेट एंड दिस इज द नॉर्मल. ठीक है, तो अब यहां पे सारे वर्टिकल में है, सो दिस कैन बी इन इक्विलिब्रियम. देखो यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है जैसे यहां पे था. इफ यू हैव अ लुक एट दिस, यहां पे भी आपको दिखेगा कि टेंशन, प्लीज सी, यू विल फाइंड आउट दैट दिस टेंशन इज लाइक दिस, this is the weight and this is the normal reaction. So this tension can also be broken into two components, like this and like this, like this and like this, vertical and horizontal. Let's break it actually. इसको तोड़ देते हैं, तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, तोड़ दिया, तो this will be ty, this will be tx. तो ty, n और weight, ये तो horizontal, vertical है, बैलेंस कर लेंगे. But what about tx? tx will be डिस्टर्बिंग दिस एंटायर सिनेरियो. समझ में आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स है, एक ही फोर्स है ना, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. सो इट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम. नाउ एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम हियर. सो अगेन लेट मी टेल यू, ये वो प्रॉब्लम है जो जनरली, नाउ इस पे डेटा भी है, ये जनरली बच्चे गलत करते हैं और ओरली कर देते हैं. दे एक्चुअली लुक एट द ऑप्शंस, ओरली कर देते हैं. सो बेसिकली आई टेल यू व्हाट दिस क्वेश्चन इज. ओके, इसमें क्या गिवन है, आई टेल यू ऑल दीज ग्राफ्स. ये ग्राफ में एक्स और वाई लिखा नहीं है, बट इफ यू रीड इट, अ मैन कैन मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक लाइक दिस, द वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सपोर्ट ए, है ना. तो बेसिकली ये सारे के सारे, सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एट द सपोर्ट ए एंड दिस इज एक्स. ठीक है, दिस इज एक्स, सो दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो जब ये आदमी यहां से वहां जाता है, पहले यहां आता है फिर यहां जाता है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन इस पे कैसे वेरी करेगा. विल इट बी लाइक दिस, विल इट बी लाइक दिस, विल इट बी लाइक दिस, और विल इट बी लाइक दिस. ओके, तो इसमें जनरल सिली मिस्टेक की जाती है. सब लोग ऑप्शन लिखो, ट्राई टू डू दिस ओरली. ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी ऑफ यू विल डू इट रॉन्ग ओरली, एंड आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. ओके, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, एंड द थिंग दैट मेक्स दिस प्रॉब्लम एडवांस्ड is your approach towards this. Okay, let me write it, NaX. Everyone try this out. तो इसको भी लिख देते हैं Na और X, इसको भी लिख देते हैं NaX वेरिएशन. ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच विल बी द बेस्ट अप्रोच हियर, है ना. तो हाँ, तो ये आदमी ऐसे जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन एक्स की बात करते हैं. तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब ये यहां से यहां जाएगा, x इज इक्वल टू 1, तो इस पे खड़ा ही हो गया ये. तो क्या नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, पता नहीं, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, या मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है, देखते हैं, है ना. इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, है ना. प्लीज एवरीवन फोकस ऑन दिस राइट नाउ. ओके, तो चलो करें इसको, लेट्स डू दिस, है ना. तो पहली चीज मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, सी गलत है, सी इज नॉट राइट, सी इज द रॉन्ग आंसर. बहुतों को लगा होगा यहां पे कम है, फिर ये जब इस पे आ जाएगा तो मैक्सिमम होगा, फिर वापस से ड्रॉप कर जाएगा. ऐसा नहीं है, रुको, ऐसा नहीं है. अब मैं बताता हूं क्यों, प्लीज सी. तो इफ आई, उसके लिए मैं बोलता हूं कि लेट द मैन बी एट अ जेनरिक एक्स, है ना, इसको हटा दो, मैन इज एट अ जनरल एक्स. ठीक है, लेट्स अप्रोच दिस मैथमेटिकली. सो व्हेन द मैन इज एट अ जेनरिक एक्स, तो उस टाइम टॉर्क क्या होगी. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई वांट टू फाइंड आउट NA as a function of x, NA as a function of x. ठीक है, NA as a function of x. तो forces डालते हैं. So everyone please have a look at the forces. So if I look at the forces, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा that will be NA. ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा प्लैंक पे that will be NB. ठीक है, एक इसका वेट होगा, ओके, वेट, एक ये इसका टॉर्क होगा इसके मास की वजह से mg because of the man. ठीक है, so these are the forces on the plank. ये मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना, ये प्लैंक है, एक इसका mg, इसका एक वेट लगेगा इस पे, है ना. If I look at the entire system with the man on top of the plank, है ना, तो ये mg ऐसे नीचे लग रहा है, टॉर्क एक, मतलब टॉर्क अबाउट विच पॉइंट में बताऊंगा, टॉर्क से क्यों मैं बार बार टॉर्क क्यों बोल रहा हूँ,
है ना, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज इन इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखो, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट मूविंग अप और डाउन, फोर्सेज आर बैलेंस्ड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, एंड प्लस इट इज नॉट रोटेटिंग ऑल्सो, है ना. तो दैट मीन्स इफ इट इज नॉट रोटेटिंग, दैट मीन्स द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट और टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी जीरो. Torque about any point will be zero. But which is the best point to take the torque? Now that is the important thing. The best point to take the torque about is, guess कौन सा point होगा? This point. If you choose this point, इसके about torque को balance कर दो, क्योंकि मुझे ये variable नहीं चाहिए, NB. NB is also variable, NA is also variable, बाकी सब constant है. तो मुझे NB के about torque को balance कर देना best रहेगा to actually solve this problem. Very good method. तो यहां पे about this point मैं बोलूंगा net torque is zero. मजा नहीं आता, ऐसे बोलते हैं clockwise torque is equals to anti clockwise torque, है ना, लिख देते हैं torque ये is equals to torque ये हो गया clockwise, ये हो गया anti clockwise. अब इस point के about ये क्या है, anti clockwise, ऐसा वाला torque है, ये भी ऐसा वाला है, ये ऐसा वाला है, ठीक है, दिख रहा है. NA will make it go clockwise, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. अब विद डिस्टेंस चुपचाप लिख दो सब कुछ, है ना. इसका डिस्टेंस कितना है, ये 4 है, तो ये सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा, राइट, तो ये 2 पे होगा, है ना. ये mg कितने पे होगा, ये x है, तो ये पूरा कितना है 5, तो ये 5 माइनस एक्स होगा, इस पॉइंट से ये 5 माइनस एक्स पे होगा, ठीक है. तो लेट्स ट्राई टू राइट द टॉर्क, लेट्स ट्राई टू बैलेंस द टॉर्क. तो ये अब देखो ये वेट, ये ऐसा वाला टॉर्क है ना, हाँ, तो ये वेट इंटू 2, यहां पे लिखते हैं W इंटू 2, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, mg इंटू 5 माइनस एक्स प्लस mg इंटू 5 माइनस एक्स, ये भी लिख दिया, इज इक्वल्स टू Na की वजह से टॉर्क ऐसा है, Na इंटू अब कितना है, अब ये देखो Na इंटू Na ये वाला फोर्स कितने डिस्टेंस पे है, 4, Na इंटू 4 इज इक्वल्स टू Na इंटू 4. हैव आई टेकन एवरीथिंग? एब्सोल्युटली. ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, सो इन दोनों की वजह से टॉर्क इज इक्वल्स टू इसकी वजह से टॉर्क. सिंपल अबाउट दैट पॉइंट, ये इक्वेशन आ गई. सो नाउ यू हैव Na एज अ फंक्शन ऑफ x, बिकॉज बाकी सब कांस्टेंट है. प्लीज सी, Na एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया आपके पास, और क्या चाहिए था, Na और x का कर्व चाहिए. तो लेट्स ट्राई टू सी ये आता क्या है. सो एवरीवन सी दिस, सो दिस विल बिकम 4 टाइम्स Na, है ना, विच इज योर y, ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, अगेन अ कांस्टेंट mg. सो बेसिकली कैन आई से दिस विल बी सम कांस्टेंट c1 mg इंटू एक्स ना, सम कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस एक्स, क्योंकि माइनस साइन भी है, ओके, सम माइनस c1x प्लस c2, है ना. 5 mg प्लस 2w इज अगेन अ कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये भी एक कांस्टेंट है. सो कैन आई से दिस विल बी ऑफ द फॉर्मेट y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c. इट विल बी ऑफ दिस फॉर्मेट, यहां पे एक नेगेटिव आएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c, नेगेटिव स्लोप, एंड इट हैज अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऑफ द y intercept. So mathematically you've understood that it's a straight line like this. मतलब अब how to digest this, मतलब यहां पे जब ये था तब तुम्हारे पास मैक्सिमम नॉर्मल की वैल्यू थी. यू कैन एक्चुअली वेरीफाई दिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल विल बी when he is here. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. ओके, अब ये क्वेश्चन मेनी ऑफ यू वुड हैव सीन दिस क्वेश्चन इन योर एडवांस्ड प्लस एक्सरसाइज, है ना, सबके, चाहे आपके इंस्टीट्यूट्स का आपने देखा हो या इन मेनी बुक्स ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द एडवांस्ड एक्सरसाइजेस. एंड व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन इज बिकॉज अगेन many of the students get it wrong and many of the students ask this as a doubt. I really wanted to involve this question because I've got this every year. I mean, in my last 9 years of experience, I've got this question hundreds of times. मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है in some way or the other. बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें. Sometimes it is asked कि what is the velocity of this point if this is moved with velocity v meters per second. What is this? मतलब ये हो क्या रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना कि जब ये ऐसे जाएगा तो ये चपटा गिरेगा. मतलब बेसिकली इट इज समथिंग लाइक दिस. ये एक हिंज है, ये एक हिंज है ना. तो ये पूरी चीज ऐसे फ्लैट होती रहेगी. सो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम ये पूरी एक लाइन बन जाएगी. इसको ऐसे खींच सकते हो. ठीक है, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट. These are hinges and what is given is that these are rhombuses. ये rhombus है, ये rhombus है, ये rhombus है. और ये भी given है कि rhombus, ये जो rhombus है everyone, please see these are rhombuses and they are having sides of the ratio 5
है ना, 5:3:2, ठीक है। मतलब ये साइड 5x है, मतलब 5l है, तो ये 3l है, ये 2l है, तो ये रेशियो मेंटेन्ड है, ठीक है। ये 5:5:5:5 है, तो ये 3:3:3:3 है, ये 2:2:2:2 है। तो सिमिलरली इनके डायगोनल्स भी सेम रेशियो में होंगे या नहीं होंगे? कैन आई से कि अगर इफ द रोम्बस इज, मतलब बेसिकली रोम्बस को मैंने 2x से 3x कर दिया, से 5x कर दिया, तो ऑब्वियसली डायगोनल विल आल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, डायगोनल विल आल्सो इंक्रीज। मुझे डायगोनल से मतलब है, तो मैं डायगोनल को बोल देता हूं, ध्यान से सुनना, मैं बोल देता हूं चलो ये 5x है, ये 2x है, ठीक है, और ये 3x है। कितना ओरल हो जाएगा सवाल? सो मैंने बोल दिया कि डायगोनल इज 2x, 3x, 5x। समझ में आ गया? नाउ ये पूरी लेंथ कितनी है? अब यहां से यहां तक देखो, ये पूरी लेंथ कितनी है? 10x, ओके। और ये पॉइंट v मीटर्स पर सेकेंड से बढ़ रहा है, तो व्हाट विल आई से? द रेट ऑफ चेंज ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज v मीटर्स पर सेकेंड। तो मैं लिखूंगा d/dt of 10x is equals to plus v. It is increasing by v meters per second. मुझे निकालना क्या है? मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। Let's call this as v1, ठीक है। तो v1 के लिए क्या करूंगा मैं? अब यहां पे देखो, ये लेंथ निकाल लो, कितना सिंपल प्रॉब्लम है। ये कितना है? 5x और 3x, तो ये कितना हो गया? 8x। तो सिमिलरली अब यहां से मैं बोलूंगा d/dt of 8x is equals to v1, is equals to v1। तो अब अल्टीमेटली ये क्या है? ये आ गया तुम्हारा 10 बाहर आ जाएगा, और तुम्हारा ये यहां से आ गया dx/dt is equals to v/10, ठीक है। और ये क्या है? 8 dx/dt, 8 बाहर निकाल लो, सो दिस विल बी 8 into dx/dt which is your v1 and this is v/10। यहां पे लिख दो 8/10 into v is your v1 and this will be your करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल। सिमिलरली अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होती, इसकी निकालनी होती, तो क्या होती? इसकी वेलोसिटी निकालनी होती तो ये 5 टाइम्स dx/dt होता। समझ में आ गया? तो 5 टाइम्स dx/dt हो जाता, तो वो v/2 हो जाता, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रॉब्लम, अगेन लास्ट प्रॉब्लम इज अ लेजेंडरी प्रॉब्लम। इसमें विजुअलाइजेशन शुड बी मैक्सिमम। अब एवरीवन, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? अब मैं समझाता हूं ये प्रॉब्लम है क्या, है ना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। फिजिक्स इज एवरीवेयर, यहां पे स्केल पड़ी थी, तो लेट्स ट्राई टू डू इट विद द स्केल। तो स्केल में अगर ये ऐसे है, समझो मेरी बात को, है ना, और कुछ रिंग टाइप है क्या? नहीं, बीड टाइप नहीं है। मैं इसको बीड बना लेता हूं, इसको यहां पे रख देते हैं। सो इफ दिस इज अ बीड, मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ दिस इज अ बीड एंड अगर ये ऐसे नीचे जा रहा है, प्लीज सुनो, है ना, अगर ये ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली दिस बीड का mg, दिस बीड का mg विल एक्चुअली रोटेट दिस लाइक दिस, यही होगा ना। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा है तो इसका mg इसको नीचे ले जाएगा, धकेलेगा इसको, इसकी वेलोसिटी भी बढ़ाएगा, राइट। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई दिस प्रॉब्लम इज बकवास। Why the reason why this problem is बकवास is, यहां पे ऑलरेडी दे रखा है कि ये मासलेस रॉड है, इट इज अ नेग्लिजिबल मास का रॉड, ठीक है। दिस इज अ नेग्लिजिबल मास का रॉड एंड इसका मास भी नीडेड नहीं है, 5 kg दे रखा है, बट वो भी नीडेड नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों, है ना। एंड इट्स गिवन दैट दिस इज 2 meters लॉन्ग, दिस इज एट हाफ द डिस्टेंस, 50 centimeters इज हाफ मीटर, ठीक है। 50 centimeter विल बी और हाफ मीटर, तो ये हाफ मीटर पे, ये 1 है, ये हाफ पे, तो उसके मिड पॉइंट पे ये है। तो इफ दिस इज मासलेस, तो ये हवा की तरह हो गया, बेसिकली मतलब बेसिकली वैक्यूम की तरह हो गया। सो दिस मासलेस रॉड और इसके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? लेट मी फर्स्ट मेक यू विजुअलाइज व्हाट विल हैपन। प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट विजुअलाइज द मोशन, देन द प्रॉब्लम विल बी अ पीस ऑफ केक। See, if you are not visualizing physics, you are not doing justice to the subject itself. मतलब फिर तो सब कुछ बेकार है। So अब ये देखो, यहां पे होगा क्या, पहले उसको विजुअलाइज करते हैं, प्रॉब्लम को भूल जाओ। What will happen here? Let's have a look at this. If this rod is massless, तो ये इस पे एक mg लगेगा और ये रॉड को भी रोटेट करेगा और ये नीचे जाएगा, इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये हवा की तरह है, ये इसको कुछ इंपैक्ट नहीं कर सकता। देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, दो मास अगर छूते हैं एक दूसरे को, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है। ओके, दो मासेस एक दूसरे को छूते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है, समझ रहे हो ना, कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट। बट ये तो मासलेस है ना, इसकी कोई औकात नहीं है बेचारे की, मासलेस है ही नहीं बेसिकली,
थियोरेटिकल है, वैसे तो मासलेस कुछ होता नहीं है, बट इट इज सो नेग्लिजिबल मास कि नॉर्मल बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो ये mg लग रहा है, तो बेसिकली ये भाई साहब नीचे जाते रहेंगे नो मैटर व्हाट। ये विजुअलाइज हो रहा है नॉर्मल, एंड दिस रॉड विल बी कंस्ट्रेंट क्योंकि ये हिंज है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये यहां पे होगा और रॉड ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये रॉड ऐसे कुछ हो जाएगी, करेक्ट। ये चीज विजुअलाइज हो गई कि ये नीचे जाएगा, रॉड भी रोटेट होगी इसके साथ। अगर ये हो गया तो प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं है। ओके, नाउ लेट्स एक्चुअली हैव अ लुक एट हाउ वी डू दिस, है ना। ऑप्शंस को देख के कभी ओवरवेल मत होना, रूट में, रूट एकदम से देख के टफ लगता है बट है बेकार, मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है। सो ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज मत हो, ये देखना तुम कितना आसानी से होता है, ठीक है। सो इफ दिस इज हाफ, पहले देख लो, पहले ज्योमेट्री देख लो। इफ दिस इज हाफ, क्योंकि हाफ पे था, और ये कितना नीचे आया उसमें हमें मतलब नहीं है, बट दिस एंटायर लेंथ वाज 1, दिस एंटायर लेंथ वाज 1, तो ये भी 1 होगी, तो ये भी 1 है। तो अगर ये 1 है और ये हाफ है, ओके, इफ दिस इज हाफ एंड दिस इज 1, सो दिस विल बी √3/2, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। याद देख लो यार, यहां से cos थीटा विल बी 60 डिग्रीज, अगेन cos थीटा विल बी हाफ, ओके, दिस अपॉन दिस, cos थीटा विल बी हाफ, तो ये 60 डिग्रीज रोटेट कर गया है, मतलब फॉर द B to come here it has rotated by 60 degrees। उसके बाद क्या होगा, अब ये भी विजुअलाइज अभी से कर लो, उसके बाद क्या होगा, अगेन ये तो बाहर निकल गई, ये तो निकल गई, तो ये रॉड की वेलोसिटी अब बढ़ेगी नहीं, अब जो भी ओमेगा अचीव हो गई है, वॉट एवर ओमेगा इट हैज अचीव्ड, ये उसी से रोटेट करती रहेगी, उसी से रोटेट करती रहेगी। तो इसमें ये पूछा है कि जब ये रॉड वर्टिकल पोजीशन में आती है, कंफ्यूज कर रहा है प्रॉब्लम, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी when the rod becomes vertical। मतलब जो भी ओमेगा यहां पे अचीव हो गई है वही ओमेगा यहां पे भी रहेगी, समझ में आ गया। तो योर आंसर, इस टिप का जो भी वेलोसिटी है और इस टिप का जो भी यहां पे जब छोड़ रहा है जो वेलोसिटी है वो सेम होगा, ठीक है, सेम होगा, मतलब वो करेंगे। अब नाउ लेट्स एक्चुअली गेट इनटू दिस। ओके, सो दिस इज योर बिफोर एंड दिस इज योर आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। दिस इज योर बिफोर एंड दिस इज योर आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर समझ में आ गया, पहले ऐसा था, ओके, पहले ऐसा था, ये ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। अब सिंपल सी बात है, जब ये h नीचे गिरता है तो वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh। कैसे, mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। विजुअलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मास इज फालतू, यू डोंट नीड मास, है ना, मतलब मास इन द सेंस कि ये 5 kg दे रखा है, बट व्हाई इज इट नीडेड। तो अगर ये, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है कि ये कितना नीचे आया है, ये हमने निकाल लिया था, ये √3/2 नीचे आया है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh, इसको h मान लो, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, √2gh, इसको मैं बोल रहा हूं v। दिस इज नॉट आवर आंसर, आवर आंसर इज इस रॉड भाई साहब की टेंजेंशियल, ये जो इस टिप की वेलोसिटी है, दिस इज आवर आंसर। अब ये है v1, आवर आंसर इज v1, और ये भी पता है कि आफ्टर द रॉड बिकम्स वर्टिकल, अब कोई टॉर्क नहीं है, जब ये छूट गई तो टॉर्क नहीं है रॉड पे, तो जब ये यहां आएगा रॉड तो ओमेगा अचीव हो गई, तो ये v1 ही रहेगा, ओके, फिर v1 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 ही रहेगा, बिकॉज उसके बाद तो मासलेस है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमें ये निकालना था। अब न्यूटन्स लॉज विल हेल्प अस। ये एंगल कितना निकाला था हमने, दिस वाज हाफ, दिस वाज हाफ, दिस वाज 1, तो दिस एंगल है 60 डिग्रीज, तो हमें पता है कि ये 60 डिग्रीज है, तो ये हमें पता है 30 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है ना, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्रीज। अब आएगा असली दिमाग। असली दिमाग वहां तक, यहां तक कुछ भी नहीं था, ये तो सब इजी है, असली दिमाग अब लगेगा। रिमेंबर कितनी बार यही चीज कराई है मैंने, बट ये यहां पे भी बहुत वैलिड है कि ये पॉइंट, अब ध्यान से सुनो, ये बीड की बाप फादर वेलोसिटी कहां पे है, ये तो यहीं पर जा रहा है, हमें पता है, ये दिख रहा है, हमें विजुअलाइज कर लिया हमने, है ना, विजुअलाइजेशन इज द नेक्स्ट लेवल, ये यहीं जा रहा है, ये बाप वेलोसिटी है, दिस इज अ मियर कंपोनेंट, ये उसका एक कंपोनेंट है, ये उसका एक कंपोनेंट है, क्योंकि एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, एक रेडियल कंपोनेंट होगा। मतलब अगर तुम्हें डीप में जाना है, अगेन बहुत बुकिश वे में करना है तो कोई वैसे भी कर सकते हो कि इस बीट की 2 वेलोसिटीज हैं, एक है टेंजेंशियल, एक है रेडियल, इसलिए ये यहां पे जा रहा है, बट इतने में जाने की जरूरत नहीं है, बस पता है ये बाप है, ये उसका एक कंपोनेंट है, एक फ्रैक्शन है, तो बेसिकली दिस cos 60 इज दिस, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, √2, ये v है, v
cos 60 is equals to V1, तुम ये लिखोगे V cos 60 degrees is equals to V1. बस खेल खत्म. तुम्हें निकालना था ये V1 ही निकालना था तुम्हें. V1 क्या है? V cos 60. ठीक है, बिकॉज V इज द बाप वेलोसिटी, उसका एक कॉम्पोनेंट है V1. ओके, अब ये क्या है? √2gh लिखो यहाँ पे. h इज √3/2 एंड cos 60 इज हाफ. ठीक है, ये हाफ हार्ड लिख दिया एंड दिस विल बी 2gh. सो 2g इज 20, h इज √3/2 है ना. 2gh को लिख दिया, ये 10 हो गया. जब ये रूट में आएगा तो क्या होगा? ये होगा 10√3/4. ये 4 अंदर आएगा बिकॉज 2 स्क्वायर अंदर जाएगा. ठीक है, when it goes inside the root. So this will become 5, this will become 2. So what is your answer? 5√3/2. This is your V1. 5√3/2. देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. 5, 3, 2 देखते हैं. So let's go back. Yes, A option, my dear students, is your correct answer. A option बिल्कुल सही है. A option. कितने लोगों का आया था? A option आया था. ठीक है, good problem. Now let's actually, हाँ. So that was about it. I hope this masterclass really helped you. As I said, it's a concise series and we'll be coming every day with physics, chemistry, maths. Always remember, it's a simple schedule. Initially it was 6:30 every day, but now it is 9 p.m. daily. Okay. So in the next masterclass, if you want some particular problems to be discussed, you can write it in the comments. If you have some specific thing to share, please write it in the comments. It's very important for you to write everything that you feel in the comments. Okay, I'll be waiting for it. So guys, again, please remember it's a simple link, tinyurl.com/JEE Physics. If you want to access all these great master classes, fall in love with physics, having a winning chance in your JEE, you can please have a look at all these master classes. I keep compounding them, adding all my master classes there. And again, please try solving the challenger problems. तो इन सब में जो challenger problems है will really help you in your advanced. चलो, with that, again, please don't forget to like this video if it helped you and share it with your friends. Okay, knowledge बांटने से बढ़ती है. And please hit the subscribe button. If you haven't subscribed to our channel Vedantu, please hit the subscribe button and घंटा दबाना मत भूलना. Please hit the bell icon because this will remind you, notify you for all the important master classes. So it is meaningless to subscribe if you don't press on this bell icon. So that was about it. My name is Namo Sir. I will see you again in the next master class of JEE Advanced Aspire. And again, my dear students, always remember that you were born for greatness and kindness, nothing less. So with this is Namo Sir signing off. See you. Bye.